Hello students, today I am revising or discussing the chapter the respiratory system for class 9 ICSE board. So in this chapter the important points only I will discuss. First of all, what is respiration? It is the process we all know by which the energy is released by breaking down glucose for carrying out other life processes. Why do we need energy? So we need energy for maintaining all the life processes, as I just now said. For making proteins from amino acid, we need energy. For movement, we need energy. For growth, we need energy. Plants need energy for laying out the cell wall. Even for cell division, energy is required. Contraction of muscles also require energy for movement. So movement, as I said just now, and conduction of electrical impulse in a nerve cell also needs energy. So in keeping the body warm, we need huge energy because we are warm-blooded. So warm-blooded means our temperature, body temperature does not fluctuate with the temperature of the environment. So that needs a huge amount of energy. So how important is this process, we can just imagine. So cellular respiration is giving us energy. तो स्टूडेंट्स, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि ये प्रोसेस है क्या. पहले तो ये प्रोसेस है एनर्जी को रिलीज करने का, जो एनर्जी हमारे लिए इतना ज़रूरत है. तो वो एनर्जी कैसे रिलीज हो रहा है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से. और ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है. और ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एज वी ऑल नो, एरोबिक एंड एनारोबिक. तो इसमें आपको याद रखना है कि एरोबिक में क्या इसके सेलेंट फीचर्स हैं और एनारोबिक में क्या इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स मीन्स breakdown of glucose in presence of oxygen, that is by oxidizing the glucose, by combining glucose with oxygen. So what will happen then? CO2 and water will be released with huge amount of energy, that is 38 ATP. So the equation would be C6H12O6 plus 6O2 will give 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. ATP is adenosine triphosphate. So this sounds so simple, but it is not actually that simple. इतना सिंपल वो नहीं है जैसा ये लग रहा है. क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ये पहले तो साइटोप्लाज्म में होता है, फिर इससे जो पायरुवेट रिलीज होता है, फिर पायरुवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. और इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. और इस क्रेब्स साइकिल में हर स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स हैं, एंड देयर आर स्पेसिफिक एंजाइम्स इन ईच स्टेप फॉर द breaking down of this pyruvate and for the release of energy which takes place in mitochondria. So in aerobic respiration there are two steps. The first step is in the cytoplasm, that is called glycolysis, where the glucose is converted into pyruvate, and this pyruvate is a compound of pyruvic acid which is there in our already there in our body, and it is a very important intermediate stage of all metabolic processes. So then pyruvate will be broken further down into carbon dioxide, water and your ATP, 38 ATP. So this is a long process, involves so many steps, and for each step some enzymes are there
which are helping in the chemical reaction. So this is about the aerobic respiration, and this is the same in plants and animals. तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगा 38 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें दो स्टेप्स हैं, एक तो ग्लाइकोलाइसिस है जो साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज होता है, और फिर पायरुवेट सेकेंड स्टेप जो है वो पायरुवेट का कन्वर्शन है या पायरुवेट का ब्रेकडाउन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और उसके साथ 38 ATP रिलीज होता है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप विच इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स, and the entire process, entire cycle is called the Krebs cycle. So this is cellular respiration. और फिर आपको याद रखना है एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि ऑक्सीजन के कमी के कारण या ऑक्सीजन के एब्सेंस के कारण, विदाउट ऑक्सीजन और विद लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस, तो इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के बिना अगर ग्लूकोज टूट रहा है तो वो क्या है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर वो प्लांट में हो रहा है तो उसमें एक प्रोडक्ट निकलेगा जिसका नाम है एथेनॉल और अल्कोहल, जिसका एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट का हमेशा एनारोबिक ही रेस्पिरेशन होगा और उसमें एथेनॉल निकलेगा, जिसके वजह से ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बीवरेज इंडस्ट्री में या अल्कोहल इंडस्ट्री में। और अगर एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात किया जाए तो उसमें ब्रेकडाउन तो होगा ग्लूकोज का विदाउट ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, और जिसके वजह से ये एनर्जी तो रिलीज होगा लेकिन बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ओनली 2 ATP। और एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, लैक्टिक एसिड भी बनेगा जो उस जगह पे जहाँ पे एनारोबिक हो रहा है, उस पार्ट में जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होगा, और जिसके वजह से ही हम लोगों को स्प्रेन या पेन होता है जब हम कुछ दिनों के बाद जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या ज़्यादा दौड़ धूप कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लेते हैं, तो पैरों में स्प्रेन का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है, डिस्कम्फोर्ट का अनुभव होता है। तो इसलिए होता है कि लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगता है, और जब हम किसी पार्ट ऑर्गन का खास करके पैरों का जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाता है, तो उतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है जिससे वो ग्लूकोज ब्रेक कर सके, ब्रेक डाउन हो सके और एनर्जी रिलीज हो सके। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होने लगता है, और लैक्टिक एसिड के वजह से ही स्प्रेन और पेन वगैरह जो है, क्रैम्प्स वगैरह जो है हम अनुभव करते हैं, और कुछ समय के बाद ये फिर नॉर्मल स्थिति में वापस हो जाता है और फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन आरंभ हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज़ एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो यूजुअल फॉर्म है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अब हम ग्लूकोज की बात इसलिए करते हैं हमेशा ब्रेकडाउन में, इसलिए कि जो भी न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं फूड में वो जब रेस्पिरेशन का बात आता है तो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट में एक बार चेंज जरूर होते हैं, और तब जाके उसका ब्रेकडाउन होता है फॉर रेस्पिरेटरी प्रोसेस, फॉर द रेस्पिरेटरी पर्पस, क्योंकि एनर्जी जो रिलीज होगा वो कार्बोहाइड्रेट के या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही होगा। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, प्रोटीन हो या फैट हो, वो एक स्टेज जो है इसका ब्रेकडाउन के पहले कार्बोहाइड्रेट के स्टेज से ही इसको पास करना होगा, कार्बोहाइड्रेट बनना पड़ेगा,
में फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा और तब ब्रेकडाउन होगा. सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज आर मेंशनिंग glucose whenever there is a breakdown, whenever there is a breakdown of glucose or breakdown of this organic compound or breakdown of food for release of energy. So this is about the aerobic and anaerobic respiration students. ये आपको याद करना है. इसके जो सेलिएंट फीचर्स है आपको याद करना है. जो केमिकल रिएक्शन इसका है वो केमिकल प्रोसेस है. दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन वंस. ये सब सेलिएंट फीचर्स जो हैं आपके इस चैप्टर में, ये आपको याद रखना है. और ये एटीपी की बात हमने कहा अभी. तो ये एटीपी जो है ये क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये इस फॉर्म में एनर्जी मिल रहा है. और ये आपको याद रखना है कि जो एनर्जी हमको मिल रहा है वो है 38 एटीपी. तो हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि आपके इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट और भी एस्पेक्ट्स हैं जिसको रिवाइज करना ज़रूरी है. अब जो है चूँकि जो फूड स्टफ है, जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमली ग्लूकोज, इसके ब्रेकडाउन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने के लिए कौन सा रेस्पिरेशन ज़्यादा ज़रूरी है? दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. और इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस अनिवार्य है, एसेंशियल है. तो अब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन का ये भी बहुत आवश्यक है. तो छोटे एनिमल्स में, जैसे बहुत छोटे जो है अमीबा है, चाहे हाइड्रा है, और उसके बाद फिर आपका लीच है या अर्थवर्म है, इन लोग जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इनके तरीके जो हैं ऑक्सीजन प्राप्त करने के बहुत सिंपल तरीका है. स्किन से ही डिफ्यूज़ हो जाता है ऑक्सीजन जो है. एयर से थ्रू स्किन इनके बॉडी में डिफ्यूज़ हो जा रहा है और CO2 इनके बॉडी से बाहर डिफ्यूज़ हो जा रहा है. तो ये सिंपल प्रोसेस है, थ्रू डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडीज़. और फिर जो है अर्थवर्म है या लीच है, उनके स्किन से ये डिफ्यूजन हो जा रहा है. फिर इंसेक्ट्स में जो है वो ये है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क है, जिसमें छोटे छोटे आपके जो ट्रैकी कहलाते हैं और जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स हैं जिनको स्पैरिकल्स बोलते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह में. तो ये डिफरेंट वेज आर देयर कैसे ये ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी हो रहा है. लेकिन हायर एनिमल्स में और ह्यूमन में दी ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ इन ह्यूज क्वांटिटी. बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया का ज़रूरत है. और उस सरफेस एरिया के लिए खास हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर. तो वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं. एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें नोज़ या नेज़ल कैविटी है, फिर विंड पाइप है, ट्रैकिया, नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया जो विंड पाइप है. और विंड पाइप में हाफ रिंग्स भी हैं जो कि विंड पाइप को जो है स्टडी रखते हैं और कोलैप्स नहीं करने देते हैं जब वो एम्प्टी होते हैं. सो ये जो विंड पाइप है, ये जो एयर हम ले रहे हैं वो रिच इन ऑक्सीजन है. सो ऑक्सीजन रिच एयर वी आर टेकिंग, दैट इज पासिंग थ्रू द विंड पाइप, through after the nostrils or nasal cavity. The air is passing through the tracheids, through the trachea, और यहाँ पे जो है वो लंग्स में जाके ये ट्रैकिया जो है
ब्रोंकस या ब्रोंकाई में ब्रांच आउट हो जा रहे हैं, और देन दे आर फर्दर ब्रांचिंग आउट इन ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रांचेस, एंड देन ब्रोंक्यूल्स आर अल्टीमेटली एंडिंग इन ear sacs or alveoli. So the air we are taking is rich in oxygen, and the air we are exhaling out is rich in carbon dioxide. So it is in two steps. Then this respiration is in two steps. One is breathing and second is your cellular respiration. तो breathing का जो पार्ट है चिल्ड्रन, वो उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. तो इनहेलेशन में व्हाट इज हैपनिंग, इनहेलेशन में वी आर टेकिंग एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन. सो एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है उसको आपको समझना है, और उसके संदर्भ में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर देना है. क्योंकि जब इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है. तो एक्चुअली ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो मेन पार्ट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो लंग्स है. देयर आर टू लंग्स, एंड इसमें लंग में क्या है, लंग में एज आई सेड इज फुल ऑफ एल्वेलाई, ईयर सैक्स एंड कैपिलरीज. तो यहीं पर जो एल्वेलाई में गैसेज एक्सचेंज हो रहा है. तो व्हेन वी आर टेकिंग एयर इट इज रिच इन ऑक्सीजन. तो उसमें जो हमारे दो लंग्स हैं वो कहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं डायफ्राम के ऊपर. डायफ्राम जो एक मेम्ब्रेन है वो डिवाइड कर रहा है द चेस्ट कैविटी एंड द एब्डोमेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. सो इस डायफ्राम के ऊपर लंग्स जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं. And the diaphragm is actually dome shaped. तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जा रहा है. तो डायफ्राम जब फ्लैट हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जा रहा है, चेस्ट कैविटी बढ़ जा रहा है. और चेस्ट कैविटी जब बढ़ रहा है तो इसके अंदर का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. और वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर अंदर का कम हो जा रहा है. देन व्हाट इज हैपनिंग, जो एयर विच वी आर टेकिंग इन इज ईजिली ड्रॉन इन. बहुत ईजिली वो एयर हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है, इसलिए कि लंग्स का प्रेशर जो है, चेस्ट कैविटी का प्रेशर कम हो गया है और वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है. और इस प्रोसेस में जो रिब्स हैं, हमारा जो रिब केज है उसी के अंदर लंग्स हैं. तो रिब केज का जो रिब केज में ये एक जो इंटरकोस्टल मसल है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वो हेल्प कर रहे हैं इस इनहेलेशन के प्रोसेस में. और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो इसका उल्टा हो रहा है. जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो उसमें रिवर्स हो जा रहा है. जो डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है, डोम शेप हो रहा है. तो उसमें चेस्ट कैविटी पे डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है. तो प्रेशर बढ़ जा रहा है. द प्रेशर इनसाइड द कैविटी, चेस्ट कैविटी इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट विल हैपन, द एयर इनसाइड will be drawn out easily. The air rich in carbon dioxide will be drawn out easily. So actually in the alveoli the gases exchange is taking place. From the alveoli the oxygen is diffusing into the capillaries in the blood, in the capillaries, and CO2 from the blood is diffusing out in the alveoli, and that is being exhaled out. So that air rich in carbon dioxide is exhaled out in the process of exhalation. So this is taking place, this gases exchange is taking place in the alveoli, and this completes the system of breathing. So in human the respiration is in two parts. One is breathing and second is the cellular respiration. तो ब्रीदिंग में बच्चे
स्टूडेंट्स, ये हुआ कि जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हुआ और सरफेस एरिया एल्वोलाई का इतना ज़्यादा है, सब एल्वोलाई को अगर छोटे छोटे एल्वोलाई को ईयर सैक्स को लिया जाए तो सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है हो जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है, दैट वील हैव टू रिमेंबर द सेलेंट फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम। एंड इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और है दैट यू हैव टू रिमेंबर, आई थिंक इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आई जस्ट नॉट डिस्कस। तो कैपेसिटीज़ ऑफ द लंग्स के कैपेसिटी में कुछ पार्ट है, कुछ ऐसा सिचुएशन है या कंडीशन है जिसको आपको याद रखना होगा। एक तो टाइडल वॉल्यूम है, एयर ब्रीथ इन एंड आउट इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल एक्सहेल कितना हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको, 500 ml। नॉर्मल जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कितना एयर जो है इन्वॉल्व है, दैट इज़ 500 ml, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एंड देन द अदर इम्पॉर्टेंट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। सम एयर इज ऑलवेज लेफ्ट इन द लंग्स, कुछ एयर हमेशा रह जाएगा लंग्स के अंदर। फोर्सबली अगर हम ब्रीथ आउट करते हैं उसके बावजूद भी कुछ रह जाएगा, एयर लंग्स के अंदर रह जाएगा। दिस इज द लेफ्ट ओवर और रेसिडुअल एयर। तो जो बच जाता है एयर लंग्स के अंदर हमेशा, वो कितना होता है, इट इज़ 1500 ml, 1500 ml। एंड सम one or two other important conditions you can remember, like inspiratory reserve volume, air that can be drawn in forcibly and above the tidal air, also called the complemental air, 3000 ml। मेन इसमें आपका जो याद रखना है वो टाइडल वॉल्यूम है जो 500 ml का है, और डेड एयर स्पेस। सम टाइडल एयर इज लेफ्ट इन रेस्पिरेटरी पैसेजेस सच एज ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई वेयर नो डिवीजन ऑफ गैसेस कैन ऑकर। कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, हमेशा ट्रैकिया में कुछ ना कुछ एयर रेस्पिरेटरी पैसेज में रह जाता है, जो कि 150 ml है। So this is also important, you have to remember, students, and I am seeing if there is any other important point which is left, or you have to remember that. Yes, there are two medical conditions, like sometimes question also come related to this, hypoxia and asphyxiation. Asphyxiation or asphyxiation. Hypoxia is the deficiency of oxygen reaching the tissues. जब ऑक्सीजन का ज़्यादा कमी हो जाएगा उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्राउडेड रूम में बहुत देर तक बैठने के बाद या जहाँ वेंटिलेशन ना हो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। और दूसरा कंडीशन है एस्फिक्सिएशन में क्या होता है, थोड़ा सा ये लंबा टर्म है, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस। एस्फिक्सिएशन, ASPHYXIATION, इसमें द ब्लड बिकम्स मोर वेनस, मतलब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर हो गया है तो उसको एस्फिक्सिएशन बोलते हैं। एस्फिक्सिएशन, दैट इज टर्म्ड एज एस्फिक्सिएशन। So students, I think these are the important aspects of this chapter, and if you go through the chapter one again and again, you will be easily able to remember these points. So with that, I end my chapter here. Thank you so much. God bless you all.